اس کی رفتار بھی کم ہوگی۔ ٹیکسی ڈرائیور کے پاس بریک لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے بریک لگانے میں ذرا بھی تاخیر ہوتی تو اس کی گاڑی کا اگلا فینڈر سفید کرولا میں گھس جاتا۔ ہمارا ڈرائیور اپنی زبان میں بڑبڑا رہا تھا۔ لمحہ بھر میں ٹیکسی کے آگے بڑھنے کی راہ مسدود ہو گئی اور کرولا سے 4 تنومند مقامی پھرتی سے نیچے اتر آئے۔ ان کے تیور خراب اور ارادے خطرناک تھے۔ ان کے قریب آنے سے پہلے میں ٹیکسی سے نیچے اتر چکا تھا۔ نیچے قدم رکھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ہم غلط جگہ گھیر لیے گئے تھے۔ وہ شہر کا کوئی تجارتی بازار تھا جو اس وقت بند پڑا ہوا تھا۔ گلی میں پھیلی ہوئی اجناس وغیرہ کی بو تیزی سے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ میرے پاس ان جزویات پر غور کا وقت نہیں تھا۔ کرولا سے اترنے والے 2 پستہ قامت مقامی میری طرف بڑھے۔ بقیہ 2 نے اسد کو ٹیکسی سے اترنے سے پہلے چاپ لیا۔ میں نے پوری قوت سے ایک کے منہ پر مکہ رسید کیا۔ اس کے منہ سے تیز ہچکی جیسی آواز نکلی اور وہ لڑکھڑا گیا۔ دوسرے کو مجھ پر وار کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس کا مکہ اپنی کلائی پر روک کر اپنا داہنا گھٹنا پوری قوت سے اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر دے مارا۔ وہ کی آواز کے ساتھ اپنا پیٹ تام کر دورا ہو گیا۔ میں نے بڑھ کر اسے اپنے زوردار مکوں کی زد پر لے لیا۔ میرا گھونسا کھا کر الٹنے والا سنبھل کر دوبارہ حملہ آور ہوا۔ میں اس کے ساتھی کے ساتھ گتھا ہوا تھا۔ وہ کسی جونک کی طرح میری ٹانگوں سے لپٹ کر مجھے گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ دونوں گینڈوں کی طرح سخت جان اور زور آور تھے۔ میں نے پہلی نظر میں دیکھ لیا تھا کہ ان چاروں کی جسمانی ساکھ کم و بیش یکساں تھی۔ ان سے اپنی لڑائی لڑتے ہوئے مجھے اسد کی فکر تھی اور میرے کان ادھر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اسد بھی جم کر اپنے حریفوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ میں نے یکسو ہو کر اپنی ساری توجہ اپنے حریفوں پر مرکوز کر دی۔ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کسی قسم کا اسلحہ نہیں تھا۔ واضح طور پر وہ ہمیں جان سے مارنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ شاید راجن نے انہیں ہماری ٹھکائی کرنے کے لیے ہمارے پیچھے روانہ کیا تھا۔ میں نے اپنے جسم کو بل دے کر ذرا سی گنجائش پیدا کی اور اپنے سامنے والے کے چہرے پر شدید ٹکر رسید کر دی۔ وہ کرا کر لڑکھڑایا۔ اس کے بوجھ کے نیچے دبتے ہی دوسرے آدمی کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ اپنی پنڈلیوں کو ذرا سی آزادی ملتے ہی میں نیچے جھکے ہوئے حریف پر اندھادھند گھٹنوں کی ضربات لگائیں جو میری خوش قسمتی سے اس کے چہرے پر پڑی اور مجھے ان دونوں کی گرفت سے آزاد ہونے کا موقع مل گیا۔ میری ٹکر کھانے والے کی پیشانی اور ناک خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ اس کے خون کی چپچپاہٹ میں اپنی پیشانی پر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے قدرے پیچھے سرک کر پختہ سڑک پر اپنے قدم جمائے اور ان دونوں کو بیک وقت اپنے مکوں کی زد میں لے لیا۔ اس دھینگا مشتی میں ہم گاڑیوں سے کچھ دور ہٹ گئے تھے۔ ہمارا ٹیکسی ڈرائیور اچانک ہونے والے تصادم سے دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ موقع ملتے ہی اس نے ٹیکسی ریورس کی اور اپنے کرائے وغیرہ کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس وقت تک میرے دونوں حریف مجھے کوئی ضرر لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ وہ اپنی عددی برتری اور طاقت کے گھمنڈ میں اندھادھند حملہ آور ہوئے تھے۔ نتیجہ ان کے خون آلود چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ 2 تھے اور 4 ہاتھوں سے حملہ آور ہو رہے تھے۔ مکے بازی کے اس مقابلے میں میرے جبڑے پر 2 چوٹیں آئیں تو میں ہل کر رہ گیا۔ دور دور تک بیچ بچاؤ کرانے والے کسی متنفس کا پتہ نہیں تھا۔ وہ مقابلہ طول پکڑتا جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے میرے دوسرے جبڑے کا نشانہ لے کر مکہ چلایا۔ میں نے اپنے جسم کو پھرتی سے پیچھے سمیٹ کر اس ضرب سے بچا لیا۔ حملہ آور اپنی جھونک میں جیسے ہی آگے جھکا، میں نے اس کی بائیں کن پٹی پر اپنی پوری قوت سے ایک کھونسا رسید کر دیا اور اتورا کر وہیں ٹھیر ہو گیا۔ اپنے ساتھی کا حشر دے کر دوسرے کے پیر اکڑ گئے۔ وہ 1 پر 1 کا مقابلہ تھا۔ اسے اپنا انجام سامنے نظر آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے جو ہی اسے جھکائی تھی، وہ مجھ پر دوسرا حملہ کرنے کے بجائے پلٹ کر پوری قوت سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے بغیر ارادی طور پر اس کے پیچھے توڑ لگا دی۔ اس وقت میرے دماغ پر مارنے یا مر جانے کا جنون سوار ہو چکا تھا۔ بھاگنے والے کی رفتار بہت تیز تھی۔ اپنے بھاری وجود کے ساتھ وہ سبک رفتاری سے دوڑ رہا تھا اور لمحہ بہ لمحہ ہمارا درمیانی فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی پوری طاقت صرف کر کے بھی اسے نہیں پکڑ سکوں گا۔ میرے سر پر اسد کی فکر بھی سوار تھی۔ میں تیزی سے واپس پلٹا۔ میں واپس لوٹا تو میرا گھونسا کھا کر تیورانے والا غائب تھا۔ موقع غنیمت جان کر وہ خاموشی سے کہیں کھسک گیا تھا۔ دوسری طرف اسد ان دونوں سے اپنے بچاؤ کی جان توڑ کوششوں میں مصروف تھا۔ میں بکوڑوں کی فکر چھوڑ کر اسد کی مدد کو پہنچ گیا۔ ان تینوں کے چہرے بری طرح سوجے ہوئے تھے۔ اسد ان سے پٹا ضرور تھا، لیکن اس نے بھی ان دونوں کو بہت بے رحمی سے ادھیڑا تھا۔ میں نے جاتے ہی ان میں سے ایک کو کمر سے پکڑ کر زمین سے اوپر اٹھایا اور بے رحمی سے نیچے پھینک دیا۔ پیچھے سے ہونے والا حملہ اس کے لیے ہمت شکن ثابت ہوا۔ وہ اپنی کمر تھام کر سڑک پر لہراتا رہ گیا۔ میں پھرتی سے چوتھی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ طاقت کا توازن اچانک الٹ گیا تھا۔
पहले वो दोनों मिलकर असद को मार रहे थे, अब वो अकेला हम दोनों के रहमो करम पर था। मुझे इनकी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना पड़ा। मेरी मौजूदगी ने चौथे आदमी को इतना हवास बाख्ता कर दिया कि असद ने उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ कई मुक्के रसीद करके उसके रहे सही औसान भी खता कर दिए और उस सड़क पर ढेर हो गया। असद ने उसकी पसलियों पर ठोकर मारकर हाँफते हुए कुछ सवाल किया। जवाब में उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कुछ कहा। इन दोनों का एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ सका। हमारी टैक्सी वापस जा चुकी थी। वो वीरान सड़क काफी लंबी थी। मारधाड़ में हमारे हुलिये बिगड़ गए थे। मुझे वापसी की फिक्र लाक हो गई। असद को अपने हरीफ से बाजपुरुष में मसरूफ छोड़कर मैं सफेद करोला के करीब पहुंचा तो ड्राइविंग सीट वाली खिड़की में से अंदर झांकते ही मेरी तबीयत खुश हो गई। आग्नेशन में चाबी मौजूद थी। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और ऊंची आवाज में कहा, इन पर लानत भेजो और यहां से निकलो, ये कुछ नहीं बताएंगे। असद ने सड़क पर पड़े हुए दोनों बदमाशों की खोपड़ियों पर अलविदाई ठोकरें रसीद की और तेजी से गाड़ी की तरफ निकल आया। कुछ नहीं उगला। उसने मेरे बराबर वाली सीट पर बैठकर हाँफते हुए कहा, उल्लू का पट्टा मुआफिया मांगे जा रहा है। ये चारों उसके भेजे हुए गुर्गे थे। गाड़ी चलाते हुए मैं बेख्तियार हंस पड़ा। ये मुकाबला भी अजीब था। हाथ पैर खुल गए। तुम्हारे चेहरे पर काफी चोटें आई हैं, कपड़ों पर खून के धब्बे भी हैं। चोटें तो आनी थी। उसने दोनों हाथों से अपने रुखसारों का जायजा लेते हुए कहा, इनको भी छठी का दूध याद आ गया होगा। मैंने इन्हें बहुत बेरहमी से मारा है। हो सकता है कि इनके रुखसारों की हड्डियां तक चटक गई हों। इन चारों का हशर राजन की आंखें खोल देगा। ये बताओ कि मेरा क्या उलिया है। इस हालत में हम कहीं नहीं जा सकते। तुम बेहतर हो। बाएं जबड़े पर कुछ वर्म है और पेशानी पर खून लगा हुआ है। इसे कपड़े से पूंछ लो और मेरे घर चलो। वहां से हुलिया दुरुस्त करके होटल चले जाना। इस गाड़ी में वहां जाना मुनासिब नहीं होगा। मैंने कहा, परवाह मत करो। अब खुलकर ठन गई है तो एहतियात बेकार है। अपनी हालत दुरुस्त करने के बाद गाड़ी को कहीं भी छोड़ देंगे। इस हाल में गाड़ी छोड़कर टैक्सी लेना खतरनाक साबित हो सकता है। टैक्सी ड्राइवर ही रास्ते में हमें पकड़वा देगा। उसका मशवरा माकूल था। वक्त बचाने के लिए मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। चेहरों पर आए हुए वर्म और नील के निशानात को फौरी तौर पर गायब करना हमारे बस से बाहर था। असद के छोटे से फ्लैट में हम दोनों इम्कानी हद तक अपने हुलियों को मामूल पर लाए, फिर करोला में वहां से निकल खड़े हुए। असद मुझे इसी कार में होटल तक पहुंचाने पर मुसर था, मगर मैंने सख्ती से उसे मना कर दिया। रास्ते में एक मसरूफ बाजार में उसने इत्मीनान से गाड़ी पार्क की और चाबी पायदान में डालकर हम दोनों बाहर निकल आए। असद वहां से वापस अपने घर रवाना हो गया। मैं टैक्सी में होटल की तरफ चल दिया। जब से मुझे जलाल की जुबानी ये पता चला था कि असद को फौरी तौर पर पाकिस्तान वापसी भुलाया जा रहा है, मेरे दिल की कैफियत कुछ अजीब सी थी। वो इन अहकाम से बेखबरी के आलम में पूरी तनदही से अपना फर्ज पूरा कर रहा था। मेरे दिल में कई बार आई कि उसे एतमाद में लेकर इस खबर से आगाह कर दूं, लेकिन जलाल से किए हुए वादे ने मेरी जुबान पर ताले डाल दिए। मेरे लिए ये बात खासी अफसोसनाक थी कि बैंकॉक से जाते जाते उसे एक ऐसे मार्के से दो चार होना पड़ा था जिसके नतीजे में उसके खदोखाल खासे बिगड़ गए थे। इस वक्त तक मैं महज दान के एमा पर मजबूर होकर राजन के खिलाफ मैदान में उतरा हुआ था, लेकिन इस वाक़े के बाद मेरे दिल में इस मकरूज सूरज शैतान के लिए नफरत पैदा हो गई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने हाथों से इसका करही चेहरा इस हद तक बिगाड़ दूं कि इसके लिए खुद को पहचानना मुश्किल हो जाए। मैं इन ख्यालात में गलता पीछो ताप खाता हुआ होटल पहुंचा तो गजाला मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही बेचैन होगी। मैं उसकी मोहब्बत आमेज तीमारदारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए बिस्तर पर दराज हो गया। वो मेरे चेहरे के नील सहला रही थी और मैं उसे गुजरे हुए वाकयात से आगाह कर रहा था। उसे ये जानकर कदर खुशी हुई कि मेरा बराह रास्त राजन से तसादुम नहीं हुआ। उसने बुज़दिलाना अंदाज में अपने गुर्गों के जरिए हमला किया था। वो सब सुन लेने के बाद उसने बताया कि मेरी गैर हाजिरी में चाउफान और वीरा के फोन आए थे। वीरा गपशप के मूड में थी। चाउफान ने मेरे लिए पैगाम छोड़ा था कि मैं पहली फुर्सत में बड़े आदमी से बात कर लूं। क्या उसने होटल के नंबर पर फोन किया था? मैंने चौंक कर पूछा। नहीं, उसने यहाँ वाले मोबाइल नंबर पर फोन किया था। वीरा ने कराची वाले मोबाइल का नंबर इस्तेमाल किया। होटल के नंबर पर किसी ने राब्ता नहीं किया। वो झिझक कर खामोश हुई तो मुझे महसूस हुआ कि मजीद कुछ कहते कहते रुक गई थी। कहो तुम और क्या कहना चाहती हो? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। वादा करें कि आप चाउफान से लड़ाई नहीं करेंगे। अब मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मैंने हंसकर जवाब दिया। राजन से बात बिगड़ गई है। असद किसी भी वक्त वापस चला जाएगा। बैंकॉक में मुझे इन्हीं लोगों का सहारा है। क्या इस मरदूद ने तुमसे वो बदतमीजी की है? बदतमीजी तो नहीं की, वो सोचते हुए बोली। कुछ अजीब सी बात कर रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरी जुबान से आपकी बुराइयां सुनना चाहता हो। मैंने उसे डांट दिया। तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने शगुफ्तगी से उसकी हौसला अफजाई की। इस बेचारे का ज्यादा कसूर नहीं है। दानौरत का सताया हुआ है। उसके पेट में घुसने के लिए मैंने उसके सामने तुम्हारी खासी करदार कशी की है। चाउफान को भी कुछ भनक मिल गई होगी।
जब मियाँ बीवी में अनबन हो तो कोई मुश्तरक शनासा ऐसी हरकतें कर सकता है। वो तुमसे दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करेगा। आपको उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे उसने दोबारा मेरे मुंह लगने की कोशिश की तो मैं खुद उसे संभाल लूंगी। मेरे इतना काफी है कि आपने मुझे पस मंजर के बारे में बता दिया। उसने मेरी बात खत्म होते ही जल्दी से कहा, क्यों ना मैं डांस से पहले इससे बात कर लूं। मैंने उससे राय मांगी। ये बात वो भी कह सकता था, बिला वजह उसे मुंह ना लगाएं, डान से बात करें। मैंने गजाला का मशवरा मानकर इसी वक्त डान का मोबाइल फोन नंबर मिला लिया। वो सेलर्स बार में रश का वक्त था। डान अपने बार के कैश पर खुद मौजूद रहता था ताकि अपने अमले की कारकर्दगी के साथ वहां आने वाले नापसंदीदा अनासिर पर भी कड़ी नजर रख सके। जाफान के कहने के मुताबिक डान की गहरी दिलचस्पी के सबब सेलर्स बार का माहौल हर किस्म की शरपसंदी से पाक था। आने वाले अपनी धुन में मगन रहते थे। कोई गैर जरूरी तौर पर दूसरों की तफरीहात में मुखल नहीं होता था। इन खूबियों की बिना पर सेलर्स बार पीने पिलाने के शौकीनों में बहुत मकबूल था। घंटियां बजती रहीं। मैं डान की बड़ी हुई मसरूफियात के पेश नज़र तहम्मुल से इंतजार करता रहा। चौथी घंटी पर डान की तरफ से हेलो की सूरत में जवाब आ गया। मैं अली बोल रहा हूँ डान, मुझे तुम्हारा पैगाम मिला था। मैं 2 बजे फारिग होकर ऊपर चला जाऊंगा, तुम यहाँ आ जाओ। डान ने मेरी बात काट कर तहकमाना लहजे में अपना नादर शाही फरमान सुना दिया। रात के 2 बजे? मैंने हैरत से कहा, क्या यह मुलाकात कल के लिए मुलतवी नहीं हो सकती? बक बक मत करो। डान की आवाज में तहक्कुम के साथ अपनायत भी रची हुई थी। तुमने मेरे दिमाग में आग लगा दी है। मैं चाउफान से कह दूंगा, वो नाहंजार तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। ये याद रखना कि 2 बजे तुम्हें यहाँ पहुंचना है। तुम्हारा हुक्म है तो मैं सर के बल लाऊंगा। मैंने बेचारगी से कहा, सच बात यह है कि मैं आराम करना चाह रहा था। आज बैंकॉक के लुटेरों से मेरी झड़प हो गई थी। मैंने तमहीद के तौर पर झड़प का जिक्र छेड़ दिया ताकि मेरे चेहरे के नील डान के चौंकने का सबब न बन सके। मैं उसे यह नहीं बता सकता था कि मेरा राजन के आदमियों से तसादुम हुआ था। वो कहानी कुछ और थी जो डैनी और आईबी के जिक्र के बगैर पूरी नहीं हो सकती थी। डान ज़हीन और चालाक आदमी था। असल वाक़या सुनकर वो ऐसे ऐसे सवाल करता कि मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता। इन मसाइल से बचने के लिए लुटेरों का मफरूज़ा सबसे मौजू था। डान ने लुटेरों को जिक्र को ज़रा भी अहमियत नहीं दी। इसी लहजे में कहा, तुम आ रहे हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसने मेरा जवाब सुनने की जहमत के बगैर फ़ोन बंद कर दिया। रात के 2 बजे उसे आपसे क्या काम पड़ गया? गजाला मेरे जवाबात से पूरी तरह समझ चुकी थी और खासी मुतजस्सिस नजर आने लगी थी। 2 बजे वो बार बंद करके फारिग हो जाता है। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, कह रहा था कि मैंने उसके दिमाग में आग लगा दी है। ऐसा तो नहीं कि उसे आपके कारनामे की खबर मिल गई हो। 4 पेशावर बदमाशों से मार कुटाई के बाद सही सालम निकल आना मोइसे से कम नहीं है। ये मुमकिन नहीं है, मैंने सोचते हुए कहा। जिस वक्त वो चारों हमला आवर हुए, सड़क दूर तक सुनसान पड़ी हुई थी। डान का कोई आदमी हमारा पीछा कर रहा होता तो इस नाजुक मौका पर अलग थलग नहीं रह सकता था। वो जरूर हमारी मदद के लिए सामने आ जाता। आप दुरुस्त कह रहे हैं, गजाला ने एतराफ़ किया। मैं वक्त के तयन को भूल रही हूँ। आपके जाने के 20-25 मिनट बाद चाउफान का फोन आया था। इस वक्त तक आप दोनों मोती महल तक भी नहीं पहुंचे होंगे। झगड़ा इसके बहुत बाद शुरू हुआ। डान या चाउफान को आने वाले वाकयात का अंदाजा नहीं हो सकता था। ये कोई और ही चक्कर मालूम होता है। डान के लबो लहजे से सताइश की बुआ रही थी। आपने बहुत अच्छा किया कि लुटेरों से लड़ाई की बात उसके कान में डाल दी। अब वो आपकी चोटों के बारे में ज्यादा पूछगछ नहीं करेगा। डान से बात करते हुए चारों खूंट चौकस रहना पड़ता है। जिस वक्त कोई चूक हुई उसके गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। ये समझ लो कि इस वक्त मैं तलवार की धार पर चल रहा हूँ। तार या पार के सिवा तीसरा कोई इम्कान नहीं है। आपको इस टेढ़े वक्त में वीरा की कमी तो जरूर महसूस होती होगी। खजाला ने अचानक वो सवाल करके मुझे चौंका दिया। मेरी तादीब के बावजूद वीरा का नाम इकासेब बनकर उसके आसाब पर बुरी तरह सवार था। मुझे किसी की कमी महसूस नहीं होती। मैंने खजाला के जज्बात का पास करते हुए जवाब दिया। जब तक वो हमारे साथ थी, कदम कदम पर उसकी और उसके मशवरों की जरूरत महसूस होती थी। वो अलग हो गई है तो मैं अपने फैसले खुद कर रहा हूँ। इनमें तुम्हारे सिवा किसी का मशवरा शामिल नहीं है। ये शुक्र का मकाम है कि मैंने अभी तक कोई गलत फैसला नहीं किया। आप मर्द हैं, वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली। इन मामलात में मर्दों का हाफजा कमजोर होता है। वो रिश्तों नातों को आसानी से फरामोश कर देते हैं। वीरा के लिए आपको भुलाना मुमकिन नहीं है। बेचारी आपको फोन करती रहती है। मैं चकरा कर रह गया। मैंने उसका दिल रखने के लिए जो बात कही थी, गजाला ने इसमें भी तनकीद का पहलू तलाश कर लिया। मुझे यकीन था कि मैंने इसके ख्याल की तायद की होती तो वो शिकायत ले बैठती कि मैं वीरा को इससे ज्यादा अहमियत देता हूँ। आखिर को एक औरत थी और औरत को मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है।
जो कभी सीधी नहीं हो सकती। नरमी से इसकी टेढ़ नहीं जाती, सख्ती करो तो टूट जाती है। वो फ़ोन करती है तो क्या करें, मैं इसके किसी फेल का जिम्मेदार नहीं हूँ। इन दोनों की खैर खबर रखना आपकी जिम्मेदारी है। गजाला को शायद इस वक्त इस तज़किरे में मज़ा आ रहा था। इसने बात बढ़ा ली। वो आपको अपना बड़ा तस्लीम करते हैं। पालबर 2 का चक्कर भी चला हुआ है, पता नहीं इसका क्या बना होगा। वीरा से तुम्हारी बात हुई थी, ये खबरगिरी तुम भी कर सकती थी, उसे आप ही घेर सकते हैं। मेरे लिए बाल की खाल निकालना नामुमकिन है। वो खिलखिला कर हंस दी। मेरे लिए उसका साथ देने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो बेहतरीन और मिसाली बीवी थी। मेरे लिए उसकी खूबियों का शुमार मुमकिन नहीं था। इसमें बस एक ही खराबी थी कि वो औरत थी। ठीक 2 बजे हम सेलर्स बार के दरवाजे पर मौजूद थे। टान के मामले में चाउफान सूरज से ज्यादा हिसास और मोहतात रहा करता था। वो मुझे फोन करके 1 बजे होटल के बाहर आ पहुंचा। इस वक्त बैंकॉक में रात गहरी हो चुकी थी। आम शहरी दिन भर की मुशक्कत आमेज मसरूफियात के बाद अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। लेकिन शहर के चीदा चीदा तफरीही मकामात पर बैंकॉक की पुरस्रार शबीना सरगर्मियां अपने चौबन पर थी। चाउफान अपनी गाड़ी को इन इलाकों में घुमाने के साथ रवान तबसरे भी करता जा रहा था, जिन पर मालूमात से ज्यादा खराफात का गलबा था। अपना फाजिल वक्त इन शब बेदार गली कोचों में गुजारने के बाद उसने सेलर्स बार का रुख इख्तियार किया। इस वक्त शहर की सड़कें तकरीबन खाली पड़ी हुई थी। चाउफान चाहता तो इन सड़कों पर गाड़ी पकाने का वहशियाना शौक पूरा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। उसे मालूम था कि वो 2 बजे से पहले मंजिल पर पहुंच गया तो उसे सेलर्स बार में घुसने की इजाजत नहीं मिलेगी। पर रुक कर वक्त गुजारने से बेहतर तक रफ्तार धीमी रखकर वक्त का फर्क रास्ते में पूरा कर लिया जाए। दरवाजे पर दस्तक दो, डान ऊपर जाने वाला होगा। गाड़ी रोकते ही उसने मुझे उकसाया। मैं दस्तक देने से पहले दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। वो अंदर से बुलेट या मुकफिल था। फिर मुझे दरवाजे के शफाफ शीशों के पीछे डान आता हुआ नजर आया। मैंने दस्तक देने का इरादा मुलतवी कर दिया। डान ने मुझे देख लिया था। उसने बुलेट गिराकर दरवाजा खोला। उसकी मुतजस्सिस नजरें मेरे शानों के पीछे गईं। फिर उसने भारी आवाज में कहा, पीछे से आओ, इसे भी साथ ले आओ। दरवाजा बंद हो गया। इस बार डान ने बुलेट लगाने के साथ दरवाजे के हजमी कुफल में चाबी घुमाई और मुड़कर अंदर की कई बत्तियां खुल कर दी। अंदर जा जाने वाली नीम तारीकी में उसका देव है कल हेवला वापस चल पड़ा। बाहर के अंदरूनी हिस्से में इस वक्त भी खासी रोशनी थी। वहां काम करने वाली लड़कियां तेजी से अपना काम समेट रही थी। तुम हमेशा जलील करवाने वाले काम करते हो। मैंने पलटकर चाउफान को आंखें दिखाई। हमें पिछले दरवाजे से अंदर जाना पड़ेगा। मास्टर डान अपना मुरब्बी है, उसके सामने इज्जत और जिल्लत की बातें मत सोचा करो। पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो अचानक तुम्हारी बहुत इज्जत करने लगा है। वो ये कहता हुआ गाड़ी से उतर आया। उसने दरवाजा खोलकर बंद किया है। वो चाहता तो मुझे अंदर बुला सकता था। मैंने तुलसी से कहा, तुम इसको इज्जत अफजाई समझते हो? मैंने उसके साथ चलते हुए कहा, मास्टर, बड़े लोगों की बातें निराली होती हैं। वो थप्पड़ मार कर भी इज्जत दे सकता है। अब यही देख लो कि तुम बात बात पर मुझसे नाराज होते रहते हो। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाता। मुझे मालूम है कि तुम खरे दिल के आदमी हो और अपनी इस खादम की कदर करते हो। चाउफान, ये तुम्हारी खुशफहमी है। कभी कभी तुम इतना गुस्सा दिलाते हो कि तुम्हारी गर्दन दबा देने को दिल चाहता है, मगर मैं हमेशा सब्र और ज़ब्त से काम लेता हूँ। जरूर लेते होगे, मगर अपनी आवाज़ नीची रखो। उसने सर हिलाते हुए खुशामदाना लहजा में कहा, किसी ने सुन लिया तो सोचेगा कि हम चलते चलते लड़ रहे हैं।